Hello everyone, welcome to our channel Educational Tubes. Here in this video we'll be covering class 9th objective questions of the chapter People as Resource. This particular chapter belongs to economics. So in this video we'll be covering People as Resource chapter and all the objective questions related to this chapter. In objective questions, we have tried to cover up fill in the blanks, MCQs, assertion and reason, correct the statement, true and false, and all the related queries that you can cover up in small questions and objective type questions. So before starting with the video, I would like you all to subscribe to our channel and hit the bell icon so that you can receive all the updates related to our channel, and don't forget to like, share and the video. So let's start the video. Here comes the first question. The question says large population can be turned into productive asset. How can you turn the large population? आपके पास बहुत बड़ी population है, उस बड़ी population को how can you turn into a productive asset? First option is by increasing the employment level. आप employment बढ़ा दो. Second, by stopping migration. माइग्रेशन इज़ व्हेन द पर्सन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि आप ये उनका लोगों का मूवमेंट रोक दो. सी, इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन ह्यूमन कैपिटल. And D option is by improving the medical facilities. So here our option, the correct option will be C option, investing in human capital. By investing in human capital, you can increase the productive asset. मतलब आप लोगों को, लार्ज पॉपुलेशन को एक प्रोडक्टिव असेट बना सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान गेट डेवलप्ड बाय. जापान कैसे डेवलप्ड हुआ? इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस वजह से जापान गेट डेवलप्ड? फर्स्ट इज बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल. क्या उसने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया था सो दैट इट गेट डेवलप्ड? बोरोइंग मनी फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. क्या उसने वर्ल्ड बैंक से मनी बोरो किया था सो दैट इट गेट डेवलप्ड? सी ऑप्शन, डेवलपिंग एग्रीकल्चर सेक्टर. जापान डेवलप्ड इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर. और ऑप्शन डी, इम्प्रूविंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. इट इम्प्रूव्ड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट गॉट डेवलप्ड. सो हेयर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. Japan invested in human capital and developed itself. Next question, sprinkling crops with insecticide is an activity of which sector? Is it an activity of primary sector? Is it an activity of secondary, tertiary or manufacturing sector? Sprinkling of crops, it is an activity of primary sector. Next, which of the following is the primary activity? इन ऑप्शंस में से कौन सी एक्टिविटी इज क्लासिफाइड एज प्राइमरी एक्टिविटी? वेदर इज फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और नन ऑफ दीज. ट्रांसपोर्ट एंड एजुकेशन आर सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड. और सर्विसेज हमारी कौन सी एक्टिविटी में प्रोवाइडेड होती हैं? दे आर इन टर्शरी एक्टिविटी. So fishing is the option that it belongs to primary activity. Next question, disguised unemployment can be traced to. How can you trace down the disguised unemployment? Whether it's available in banking sector, transport sector, mining sector or agriculture sector. We have our agriculture sector that has the most unemployed people. So here option will be agriculture. Next question, the workforce population includes people from. The workforce population जो है वो कौन सी एज ग्रुप्स के पीपल बिलोंग करते हैं, यानी कि कौन सी एज ग्रुप इन ऑप्शंस में से ऐसी है दैट हैज़ द मोस्ट ऑफ वर्कफोर्स पॉपुलेशन. वेदर इट्स फ्रॉम 15 to 59 ईयर्स और 14 to 50 ईयर्स और 21 to 50, 22 to 60. लोग कम काम करना शुरू कर देते हैं 14 to 50 ईयर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द रीजन्स? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट. इन सम मंथ्स पीपल आर एम्प्लॉयड, इन सम मंथ्स पीपल आर अनएम्प्लॉयड. दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अब now the question is, seasonal unemployment is related to which regions? Which regions there are mostly seasonal unemployment is seen?
whether in urban areas, rural regions, or both in urban and rural regions, or none of these. We mostly see the seasonal unemployment in agriculture sector, and agriculture sector is mostly related to the rural regions. So here our option will be B, rural regions. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन एक्टिविटी परफॉर्म बाय टर्शरी सेक्टर. इन ऑप्शंस में से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है दैट बिलोंग्स टू द टर्शरी सेक्टर. ऑप्शन ए, वर्किंग इन फार्म्स, दिस बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर. ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, दिस बिलोंग्स टू टर्शरी सेक्टर. नेक्स्ट ऑप्शन, मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग करना, दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, हम क्लोथ्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सेकेंड, नेक्स्ट ऑप्शन, स्टडिंग इन अ कॉलेज, इट इज़ ऑल्सो अ सर्विस. ठीक है, बट आप सर्विस यहाँ पे क्या कर रहे हो, ले रहे हो, तो दिस इज़ नॉट ऑल्सो अ टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी. सो आवर ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स. Next question, you need to mention that whether this statement is true or false. Education and skill are two determinants of earning. क्या education और skill ये दो determinants हैं जिससे हम earn कर सकते हैं. The statement is true. Next, the literacy rate of population in 1951 was 20%. 1951 में literacy rate population का 20% था. The statement is false. Next, the infant mortality rate has come down from 47 in 1951 to 34 in 2016. This particular data you can see in your book, and from there on you will know कि ये statement true है. Next we have activities which are performed with the aim of providing service to other without any regard of monetary gain are known as. वो activities जो प्रोवाइड करी जाती हैं टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर, जिसमें कोई पैसे की चाह नहीं होती है कि यू हैव टू अर्न समथिंग, उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं. अभी वी हैव स्टडीड एन एग्जाम्पल जिसमें हमने टेलर को देखा था. टेलर हु स्टिचेस ओन क्लोथ्स, उसने खुद के क्लोथ्स बनाए और उसमें पैसे नहीं का इन्वॉल्वमेंट नहीं था. ही मेड क्लोथ्स फॉर एन ओन पर्पस, ओन कंजम्पशन, एंड दैट वॉज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. Next question we have, investment can be made in humans by means of education, training and provision of healthcare services. हम humans में, human capital में invest कर सकते हैं कैसे, education के through, training के through and better healthcare facilities के through. The statement is true. Next we have fill in the blank. Dash refers to the number of deaths of infants per thousands of birth in a year. That is infant mortality rate. Next, dash refers to the number of lives per birth in a year per thousand of mid-year population. Number of live birth कब हो रहे हैं, birth rate. क्या डिपेक्ट कर रहा है ये, birth rate डिपेक्ट कर रहा है. birth rate की definition and infant mortality rate की definition है. ठीक. Next we have the activities which are related to production and consumption of goods and services for economic gain. Activities which are related to production, चीज़ों को बनाना और चीज़ों को कंज्यूम करना, सो दैट देयर इज़ इकोनॉमिक गेन. इकोनॉमिक गेन्स मीन्स एस देयर इज़ समथिंग मॉनेटरी गेन. उसको क्या बोलेंगे हम, ये हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ी थी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल पढ़ा था. यहाँ पे ये किसकी डेफिनेशन आ गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन आ गई. तो दिस इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नेक्स्ट वी हैव डैश इज़ द मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. कौन सा हमारा सेक्टर ऐसा है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को देखें या फिर एग्रीकल्चर देखें, कौन सा सेक्टर ऐसा है दैट हैज़ मोस्ट ऑफ द लेबर, दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर. नेक्स्ट, द फिजिकल फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज नोन एज, दैट इज़ नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर. आंसर इज इंफ्रास्ट्रक्चर. नेक्स्ट, द टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ अर्निंग बाय एन इंडिविजुअल इन द मार्केट. ऐसे कौन से दो डिटर्मिनेंट्स हैं जिससे हम अर्न कर सकते हैं. अभी हमने पीछे स्टेटमेंट पढ़ी थी ट्रू एंड फॉल्स में, वो ही स्टेटमेंट है ये यहाँ पे MCQ के फॉर्म में. आंसर इज एजुकेशन एंड स्किल. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर रूरल वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड जॉब्स. रूरल वुमेन लो पेड जॉब्स में क्यों एम्प्लॉयड होती हैं. ऑप्शन ए, दे डू नॉट नीड टू वर्क इन हाई पेड जॉब्स, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत ही नहीं होती हाई पेड जॉब्स करने की.
ऑप्शन बी, दे लैक इन एजुकेशन और नेसेसरी स्किल, उनके पास एजुकेशन नहीं होती एंड दे डू नॉट हैव स्किल्स। ऑप्शन सी, दे आर नॉट अलाउड बाय देयर फैमिलीज, उनकी फैमिलीज उनको अलाउ नहीं करती टू डू हाई पेड जॉब्स। एंड ऑप्शन डी कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द वेज स्ट्रक्चर, उनको वेज स्ट्रक्चर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनको वेज स्ट्रक्चर के बारे में कोई नॉलेज ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनकी फैमिलीज उनको अलाउ ना करी हो, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो खुद काम करना ना चाहें, वो ये ना चाहें कि हम काम तो कर रहे हैं बट हमको अच्छा पैसा ना मिले। एक्चुअली द रीज़न इज़ दैट दे लैक इन एजुकेशन एंड नेसेसरी स्किल्स। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सी ऐसी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है। बैंकिंग, हम कुछ अर्न कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचिंग, अर्न कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, हम कुछ अर्न कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दिस इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन विच सेक्टर शुड इंडिया इंक्रीज मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमें इंक्रीज़ कर देनी चाहिए ताकि कंट्री ग्रो करे। Whether it's agriculture, industrial, non-farming activities or tertiary sector, it is industrial sector. Next question, disguise unemployment could be traced in, अब ये क्वेश्चन हमने किया है अभी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कब ट्रेस कर सकते हैं। पहले हमने जो किया था वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का था। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट्स कौन से सेक्टर में ट्रेस डाउन कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन डज सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रमोट एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान कौन से एज ग्रुप के चिल्ड्रन इन्वॉल्व करता है ताकि वो इनमें एजुकेशन को प्रमोट कर सकते। इट इज़ 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन यू नीड टू अरेंज इन सीक्वेंस। फर्स्ट स्टेटमेंट दी है, फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म अप हो रही है। सेकेंड, प्रोवाइडिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्किल्स, हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं पीपल को। थर्ड इज़ इन्वेस्टमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स, हमने प्राइमरी स्कूल्स में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया। एंड फोर्थ, गेटिंग मेडिकल केयर ड्यूरिंग बर्थ, हम ड्यूरिंग बर्थ मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो इंसान पैदा होता है तो बर्थ हो गई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फोर्थ होनी चाहिए, हमारे हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट फोर्थ होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट, अब 3 स्टेटमेंट बची हैं, सेकंड स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स इन प्राइमरी स्कूल, ठीक है। क्यों, क्योंकि बर्थ के बाद क्या होगा, वो स्कूल जाएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट होनी चाहिए थर्ड वाली। तो 4 सबसे पहले आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में से चॉइस करनी है हमें। प्रोवाइडिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्किल्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल देना तो बात की बात हुई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स तो बात की बात हुई, कैपिटल हम इन्वेस्ट ही तो करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो बात की बात हुई, पहले हम उनको स्किल्स तो दें। तो उसके बाद थर्ड के बाद क्या आना चाहिए, सेकंड, और लास्ट में आना चाहिए 1। तो 4 3 2 एंड 1, ये ऑप्शन हमें, ये सीक्वेंस हमें जिस ऑप्शन में मिल जाएगा दैट विल बी एन आंसर। तो दैट इज़ एन 4 3 2 and 1, 4 3 2 and 1, इट इज़ एन ऑप्शन ए ओनली, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, नाउ यू नीड टू मैच द लिस्ट 1 to लिस्ट 2, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और लिस्ट 1 में हमें दिया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। तो हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिस्ट 2 में से कौन सी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स, ये भी नहीं है। कुकिंग फॉर फैमिली, दिस इज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ए का आंसर हो गया 3, ए का यहाँ पे लिख लेते हैं, ए का हो गया 3। बी प्राइमरी एक्टिविटी, अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, ये वाला ऑप्शन कट गया, 3 ऑप्शन बचे। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स या फिशरमैन कैचिंग फिश। फिशरमैन कैचिंग फिश इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी, तो 3 का हो गया 4, अब 2 ऑप्शन बचे। सेकेंडरी एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इज सेकेंडरी एक्टिविटी, तो यहाँ पे आ गया 1, हमारा ऑप्शन बचा 2, तो 3 4 2 1 जिसमें आएगा वो ही हमारा सीक्वेंस है। 3 4 2 1, ए ऑप्शन में नहीं आ रहा तो ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन में आ रहा है, यस बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न। असर्शन में हमको स्टेटमेंट दी है अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मैन पावर रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। रीज़न दिया है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है दैट इज़ शोइंग एंड दैट इज़ इंडिकेटिंग दैट वी हैव अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इफ़ आप बोथ द स्टेटमेंट ट्रू, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मैन पावर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ऑब्वियसली वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारे स्किल्स एक्वायर करते हैं, हम इतना पढ़ते हैं एंड वी डू नॉट हैव द जॉब एट द एंड। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारे मैन पावर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, दैट इज़ ट्रू। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डिक्रेस्ड इकोनॉमी। येस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है, ख़राब हो रही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। अब हम ये देखेंगे वेदर द रीज़न इज सपोर्टिंग द स्टेटमेंट और नॉट। तो रीज़न डज नॉट सपोर्ट द असर्शन, तो उसके हिसाब से वी हैव ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू। दोनों की दोनों सही हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट आर यानी कि रीज़न सपोर्ट नहीं कर रहा है ए स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो असर्शन एंड रीज़न। द एक्सपेंडिचर, असर्शन दिया है द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP हैज़ डिक्लाइन टू 2.7% इन 2017-18। एजुकेशन पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा था एज अ परसेंटेज ऑफ GDP वो डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। और कितना कम हुआ है? 2.7% इन 2017-18 पे आया है। रीज़न दिया इन 2011 लिटरेसी रेट वेरीड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। 2011 में लिटरेसी रेट चेंज था, केरला में 94 था, बिहार में 62 था। अब इफ़ यू हैव वेरीड द डाटा फ्रॉम द बुक, अगर हम बुक में से डेटा को टेली करें तो हम ये देखेंगे दिस बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। बट ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही। सो लाइकवाइज वी हैव द बी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें इन स्टेटमेंट में से सब इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज टू ओवर 68.3 इन द ईयर 2014। 2014 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63.8 पहुँच गई थी। बेस्ड ऑन द डेटा वी विल नो द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इन रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज में सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, द डिपेंडेंसी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंसी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शंस आर इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो हमारी स्टेटमेंट कौन सी गलत है? जब हमें भी पता है कि हमारी तीनों स्टेटमेंट गलत हैं तो एक बार डेटा टेली कर लेंगे और ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए सही होगा। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है विच इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन इन ऑल दी स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी हैव करेक्ट एंड रीराइट। अब हमें ये पता है कि जब हेडिंग दी हुई है करेक्ट एंड रीराइट तो वी नो कि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट गलत होगी एंड वी हैव टू रीराइट द स्टेटमेंट एंड मेक दिस स्टेटमेंट करेक्ट। तो हमें स्टेटमेंट दी है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब लोगों को जॉब नहीं मिल पाती एंड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। अब याद करो जब हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ी थी, तो हमने ये देखा था कि इन सीजनल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पर्टिकुलर पीरियड्स में लोगों को जॉब नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पे ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, Japan is rich in natural resources, so it exports the natural resources needed in its country, but at the same time it has invested on providing health and education to its people. जापान नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है तो वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करता है कंट्रीज़ में, और उसी टाइम पे उसने इन्वेस्ट भी किया हुआ है इन प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ टू द पीपल।
अब इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? जापान इज़ नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। जापान के पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, वो एक्सपोर्ट नहीं करता है, वो और कंट्रीज़ को देता नहीं है और कंट्रीज से लेता है। तो यहाँ पे 2 जगह चेंजेस किए हैं हमने, ठीक है। जापान इज़ नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट इज़ नॉट एक्सपोर्टिंग, इट इज़ इम्पोर्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड टू रीजन। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन से रीजन से रिलेटेड है? इट्स रिलेटेड टू अर्बन रीजन। मोर देन रिक्वायर्ड पीपल एम्प्लॉयड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सविता वर्किंग इन अ कंपनी विल अर्न डैश देन मीता हु सेल्स वेजिटेबल। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में जो स्टोरी थी वहाँ से फ्रेम हुआ है। सविता जो कि एक कंपनी में काम करती है, विल अर्न डैश देन मीना हु सेल्स वेजिटेबल। वो मीना जो कि वेजिटेबल बेचती है उससे ज़्यादा अर्न करेगी, विल अर्न मोर। नेक्स्ट वी हैव fill in the blanks. A dash cycle is created when parents are able to provide good quality education and health facility to their children. A virtuous cycle is created. ठीक है. Next we have government develops dash streams to equip students with occupational related to knowledge and skills. तो गवर्नमेंट डेवलप वोकेशनल स्ट्रीम्स। वोकेशनल्स मीन्स ऑप्शनल्स जो आपके पास आते हैं इन स्पाइट ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करते हैं ना, तो गवर्नमेंट इज़ डेवलपिंग वोकेशनल स्ट्रीम्स सो दैट स्टूडेंट कैन लर्न स्किल्स रिलेटेड टू द जॉब एंड ऑक्यूपेशन इन फ्यूचर। नेक्स्ट, वाई डिड शकल फादर रेज अ लोन। शकल के फादर ने लोन क्यों रेज किया, उन्हें लोन क्यों लेना पड़ा? वेदर इट वॉज टू गेट हिज डॉटर मैरिड ऑन टाइम, Option B, to enable Shakal to study a vocational course in computer. Option C, to buy seeds for his field. Or option D, to buy a tractor. So here our correct option is option B, to enable Shakal to study a vocational course in computer, ताकि वो computer course पढ़ सके। वो computer course is a vocational course। अभी हमने पीछे fill in the blank किया था ना, गवर्नमेंट डेवलप्स डैश स्ट्रीम्स, गवर्नमेंट डेवलप वोकेशनल स्ट्रीम्स, उसी से रिलेटेड ये भी है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर कोर्स जो कि क्या है, एक वोकेशनल स्ट्रीम है, वोकेशनल कोर्स है, वो स्टडी कर सके, परस्यू कर सके, दैट्स वाई हिज फादर रेज्ड अ लोन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सेकेंडरी सेक्टर में हम इंक्लूड करेंगे? वी विल इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? ऑप्शन ए, इट इज़ अ स्कीम अंडर विच एलिमेंट्री एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। येस। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी, इट इज़ एन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान सबको शिक्षा देने की बात करता है, सबको ये तो नहीं बोलता वी विल प्रोवाइड जॉब टू एवरीवन, तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन सी, इट इज़ टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन। ऐसा भी नहीं है कि वी विल प्रमोट एडल्ट एजुकेशन इन दिस, ऐसा भी कहीं नहीं बोला जाता। ऑप्शन डी, अंडर दिस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल। ऐसा भी नहीं है देयर इज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल, ठीक है। इट हैज़ सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षित करने का अभियान। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ ट्रू। ये एक ऐसी स्कीम है, एलिमेंट्री स्कीम है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू द पीपल टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सिर्फ 6 से 14 साल के लोग बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। अगर हम ऑप्शन डी देखें, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल लिखा है, यहाँ पे ऑल लिखते ही ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बारे में बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। कौन से सेक्टर इनमें से, इन ऑप्शंस में से ऐसे हैं जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करते हैं? तो वी हैव एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट, व्हाट डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल मीन। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? वेदर इट इज़ गिविंग प्रॉपर एजुकेशन टू ऑल, सबको प्रॉपर एजुकेशन देना, गिविंग प्रॉपर मेडिकल केयर टू ऑल, सबको मेडिकल केयर देना। ऑप्शन सी, गिविंग ट्रेनिंग टू दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सम स्किल्स, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उन लोगों को ट्रेनिंग देना जो किसी पर्टिकुलर स्किल में इंटरेस्टेड है। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो
ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एजुकेशन, मेडिकल एंड ट्रेनिंग ये तीनों चीज़ देना ही इज़ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, यानी कि लोगों पे इन्वेस्ट करना सो दैट दे आर मोर प्रोडक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन लार्ज पॉपुलेशन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट। ये फर्स्ट वही क्वेश्चन आ गया दैट वी हैव डन फर्स्ट इन द वीडियो। हम लार्ज पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव एसेट कैसे बना सकते हैं, बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके। और अभी देखा हम ह्यूमन कैपिटल में कैसे इन्वेस्ट करते हैं पिछले क्वेश्चन में, एजुकेशन, मेडिकल एंड प्रॉपर ट्रेनिंग देके। नेक्स्ट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में चाइल्ड की डेथ हो जाती है, बट कितने साल के बच्चे की, लेस देन 1 ईयर। सर्व शिक्षा अभियान इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग। सर्व शिक्षा अभियान एक स्टेप है ताकि हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर सब कुछ। तो इट इज़ टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि हम यहाँ पे 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। इनमें से कौन सी ऑक्यूपेशन ऐसी हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट या फिर कम्युनिकेशन। तो फॉरेस्ट्री वर्क जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इनमें से प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कौन सी नहीं है, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, फॉरेस्ट्री या फिर एनिमल हस्बेंड्री। अब ट्रांसपोर्ट नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम्स इन द अदर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग इज इंक्लूडेड इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी। बैंकिंग कौन से इकोनॉमिक सेक्टर की एक्टिविटी है, बैंकिंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ऑप्शन डी, फार्मिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन रूरल एरियाज टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी होती हैं रूरल एरियाज में, रूरल इंडिया में। सो रूरल इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सीजनल एंड डिस्गाइज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नंबर ऑफ बेबीज born every 1000 people during a year is called birth rate. Next, number of deaths for every 1000 people in a year, it is called death rate. So these two are the definitions of birth rate and death rate. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ एम टू एनकरेज अटेंडेंस, ताकि स्कूल्स में अटेंडेंस बढ़े, एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, ताकि बच्चा रिटेन हो सके, मतलब स्कूल में रह सके, आगे की पढ़ाई भी परस्यू कर सके इन स्कूल्स, टू एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। सो इनमें से उन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है दैट इज़ इंकरेजिंग द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, रिटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। सो but through the option of midday meal schemes we are doing this. So option D will be the correct option. Next question we have, which age group of children does the सर्व शिक्षा अभियान aim to promote education। अब अगर हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो इस पर्टिकुलर सर्व शिक्षा अभियान में on which particular age group we are targeting, so we are targeting the students of 6 to 14 years of age. So option A will be our correct option. नेक्स्ट वी हैव, विच इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर। ऐसा कौन सा सेक्टर है दैट हैज़ मोस्ट ऑफ द लेबर इन इट। तो वी हैव प्राइमरी सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा लेबर है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी हैव कवर्ड people as a resource, objective questions in this particular video. So thank you for watching the video. Till then, see you in the next video of Educational Tubes. Do like and do subscribe and do share the video. Thank you.